رجگا کرتے ہوئے رات گزاری لیکن رجگا کرتے ہوئے رات گزاری لیکن جب علم ہاتھ نہ آیا تو برا مان گئے، ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے۔ پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں مرحب ہے، پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں مرحب ہے، جب میدان میں آیا تو برا مان گئے، ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے۔ جا رہے تھے جو زیارت کے لیے کرب و بلا، جا رہے تھے جو زیارت کے لیے کرب و بلا، ان کو جنت نے بلایا تو برا مان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذی شرف القرصین بالنعلین الشریفین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہ را دائم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی منزلت، خداوند عالم آپ کی تمام تر عبادات کو قبول فرمائے، اس عزاداری کو جو آپ نے برپا کی رات بھر اور جس سمجھداری کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ برپا کی، خداوند عالم اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہی صاحبان عقل میں ہم لوگوں کا شمار۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم مومنین کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اوفوا بالعقود، جو تمہارے عہد و پیمان ہیں ان کو وفا کرو۔ کس سے خطاب ہے؟ مومنین سے۔ کیا حکم ہے کہ جو تمہارے عہد و پیمان ہیں ان کو وفا کرو۔ تو سمجھ میں آیا کہ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے وعدوں کا، اپنے عہد و پیمان کو وفا کرتا ہو۔ اگر آپ کو کسی بھی انسان میں وعدوں کی وفا دکھائی نہ دے تو سمجھ جائیے کہ یہ اس کے ایمان کی کمی ہے۔ یہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا مومنین سے، اے ایمان والو اوفوا بالعقود، جو وعدے، جو عہد و پیمان تمہارے ہیں ان کو وفا کرو۔ تو اگر انسان وفا نہیں کر رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ مسئلہ اس انسان کے ایمان میں ہے۔ اگر اس کا ایمان مکمل ہوتا تو یہ کبھی بھی وعدے سے بے وفائی نہ کرتا، عہد و پیمان جو کیا تھا اس سے بے وفائی نہ کرتا۔ اوفوا بالعقود، جیسے نماز کے لیے کہا اقیموا الصلاۃ، ایسے ہی اوفوا بالعقود واجب حکم ہے، اس لیے کہ وفاداری وہ صفت ہے
वफा वो सिफत है कि अगर जानवर में पाई जाए तो जानवर भी काबिल एहतराम हो जाता है। अगर वफादारी जानवर में भी पाई जाए तो जानवर को काबिल एहतराम बना देती है, इंसान में पाई जाए तो इंसान को फरिश्तों से आगे बढ़ा देती है। अस्हाबे कहफ का वाक़या आपको मालूम है, घर छोड़ा जालिम बादशाह के डर से अपने ईमान को महफूज करने के लिए। किस लिए घर छोड़ा था? ईमान को महफूज करने के लिए घर छोड़ा था, ईमान को बचाने के लिए, एक मकसद के तहत घर छोड़ा था। अपना शहर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। यहीं से ये बात भी समझ में आती है। बहुत से लोग कहते हैं भाई, हम लोग भी पढ़ते थे मजलिस में कि भाई जान को खतरा था रसूल का, इसलिए उन्होंने हिजरत की, या इमाम हुसैन की जान को खतरा था वहाँ पर, इसलिए उन्होंने जो है हज को उम्र से तब्दील कर दिया, मक्का छोड़ दिया। ध्यान रखें, जान बचाने के लिए जो सफ़र किया जाए उसे फरार कहते हैं, और मकसद बचाने के लिए जो सफ़र किया जाए उसे हिजरत कहते हैं। जान बचाने के लिए अगर सफ़र किया जाए तो उसे फरार कहते हैं, और मकसद को बचाने के लिए अगर सफ़र किया जाए तो उसे हिजरत कहते हैं। अस्हाबे कहफ ने हिजरत की, और कुरान में आयत मौजूद है हम सब के लिए भी कि हिजरत करो अल्लाह की तरफ, इल्लाह। अस्हाबे कहफ ने हिजरत की, घर छोड़ा, शहर छोड़ा, लोगों को छोड़ा अपने, और हिजरत की। पीछे पीछे जालिम बादशाह ने लोगों को लगा दिया कि उनको पकड़ा जाए कत्ल करने के लिए। ये दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, यहाँ तक कि एक गार दिखाई दी। गार में घुस गए, गुफा पहाड़ों में जो होती है। कुदरत इलाही से एक पत्थर, भारी पत्थर उसके मुहाने पर रखा गया, और इनका कुत्ता, अस्हाबे कहफ का कुत्ता, गार के अंदर नहीं गया, गार के बाहर बैठ गया, पैर फैलाकर बैठ गया। कुरान में कैफियत बयान की कि अपने दोनों पैर फैलाए हुए आगे बिल्कुल चौकन्ना बैठ गया कुत्ता गार के बाहर। कुत्ता कौन है? जो वहाँ से यहाँ तक इनके साथ आया है। मगर जब ये लोग छुपे पोशीदा हुए तो कुत्ता बाहर रह गया, ये अंदर चले गए। कुत्ता बाहर रह गया, ये अंदर चले गए, इसलिए कि कुत्ता भी अपनी मंजिलत जानता है कि ये और हैं, हम और हैं। अगर कोई भी इंसान अपने ज़माने के वली खुदा की अहमियत ना जाने, कुत्ते से ही बदतर है। गार में नहीं के बाहर बैठ गया। क्यों बैठ गया? इसलिए कि जो अल्लाह के नुमाइंदे थे उनकी हिफाजत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कहाँ बैठ गया? बाहर बैठ गया। बाहर बैठ गया उनकी हिफाजत के लिए कि जो अंदर गार में थे। अगर गार में नुमाइंदे खुदा हो, कुत्ता भी उनकी हिफाजत के लिए बैठ जाए तो खुदा उसको भी एहतराम से याद करता है। वफादारी साथ नहीं छोड़ा। तारीख लिखती है कि खुदावंद आलम ने अस्हाबे कहफ को भी जिंदा रखा है और उस कुत्ते को भी जिंदा रखा है। जन्नत में कुछ जानवर पहुंचेंगे, उनमें से ये कुत्ता भी हुआ। हम लोग कहते हैं कुत्ता तो नजीस होता है, पहुंचेगा कैसे? खुदावंद आलम के हाथ में है, वो माहियतें बदलता है। आप पढ़िए रिवायात, माहियतें तब्दील कर देता है। जो जिसका जाहिर है वो जाहिर ही उसका बातिन है, ये जरूरी नहीं है। कितने ऐसे इंसान हैं कि जो उठेंगे कुत्ते की शक्ल में। वाह 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 वाह। कितने ऐसे जानवर हैं जो उठेंगे इंसान की शक्ल में। रिवायात है, रसूल इस्लाम जब गए हैं मेराज पर, उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं कि जो जिनकी जबानें निकली हुई कुत्ते की तरह हाँफ रहे हैं। कहा ये कौन है? कहा ये वो है कि जो अपने ही खानदान वालों से लड़ते थे, झगड़ते थे, बुरा भला कहते थे। माहियत क्या हो गई? कुत्ते वाली। यानी इंसान की माहियत है ये।
ये अल्लाह वही वाक़े में अर्ज़ करता हूँ। शेख बहाई नाम सुना होगा आपने, इमाम रज़ा के रोज़े का जो नक्शा बनाया इमाम रज़ा के रोज़े का जो नक्शा बनाया था उन्होंने बनाया था। आँखों से पर्दे यानी हटे हुए थे उनकी, उस मंजिल पर थे कि कश्फ़े शुहूद के आलम में थे। इमाम से तलब बहुत थी, जाकर देखा मस्जिद में आप लोग जाएँ, खुदबंदारा जो नहीं गए उनको ज़ियारत नसीब फरमाए। रोज़े पर ज़री की कारतों इतनी भीड़ होती है कि इंतहा। खड़े हुए थे, क्या देखा कि ज़री का दरवाज़ा खुला, कश्फ़े शुहूद की आलम का, यानी जो आम आंखों से नहीं दिखता वो उनको दिखता था। दरवाज़ा खुला और इमाम बाहर निकले और ज़री के चारों तरफ बहुत से जानवर, कोई बंदर, कोई कुछ, और इमाम उनके सरों पर हाथ फेरते हुए आ रहे हैं। मौला ये क्या कहा कि हमारे चाहने वाले ही हैं, अगर इनकी दुरूनी सिफात इनकी रूह पर गालिब आ चुकी है, मगर फिर भी इमाम मोहब्बत अपनी पूरी करते हैं चाहने वाले। तो अपनी सिफात को ऐसा बनाइए कि इंसान रहे। तो असहाबे कहफ का कुत्ता बैठा हुआ था बाहर, तारीख़ लिखती है कि कुरान कहता है, तारीख़ कुरान कहता है कि खुदावंद आलम ने असहाबे कहफ में तो इख्तिलाफ कुरान में बयान किया कि कोई कहता है 4 है 5वां कुत्ता है, कोई कहता है 3 है 4था कुत्ता है, कोई कहता है 6 है 7वां कुत्ता है, कोई कहता है 7 है 8वां कुत्ता है। कुरान में बयान किया ये इख्तिलाफ, मगर एक सिफत को बयान कर दिया कि अगर सिफत वफादारी कुत्ते में पाई जाए तो वो भी क़यामत तक उसका जिक्र बाकी रहेगा। अब आप समझे क्यों इमाम हुसैन ने जब सर नेज़े पर गया तो पूरे कुरान में किसी सूरे की तिलावत नहीं की, सूरे कहफ की तिलावत की। क्यों? ताकि बता सके कि अगर असहाबे कहफ का कुत्ता भी वफादारी करे और तुम, जिसने तुमसे कहा था कुल्ला दारों की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए, का मसाइल कि अगर हमारे नाना ने इसके बजाय ये जो कहा कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, अगर इसकी बजाय ये कहा होता कि मेरे क़राबतदारों के साथ जुल्म करो, तो कसम खुदा कि इससे ज़्यादा जुल्म तब भी न कर सकते। अफसोस की बात है कि जो आए तत्हीर के साए में रहने वाली बेरिदा कर दिया गया उस ज़ैनब को। कुरान जिसके सर का तवाफ करता हो, उस ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई। वो हुसैन जो ज़बान पैगंबर चूस कर बढ़ा हुआ हो, लुआब रसूल से जिसकी परवरिश की हो। कितनी क़यामत की बात है कि जब हुसैन को शहीद कर दिया तो उमर साद कहता है कि सुलझना पर हमला न करना, इसलिए कि रसूल की सवारी है। ज़ैनब का कलेजा फट गया, अरे सवारी की इतनी अहमियत है, सवारे दो शेर पैगंबर। चंद जुमले हैं बस। तारीख लिखती है कि 10 मुहर्रम को जब एक शहीद अपनी शहादत बारगाह खुदा में पेश कर चुका तो अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए, आकर कहा आका मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। सोचिए अब्बास क्या था हुसैन के लिए। इमाम कहते हैं अब्बास तुम्हें मरने की इजाज़त कैसे दे दूँ, तुम तो मेरे लश्कर के अलंबरदार हो। नजरा यमीन व शमाला, दाई जानिब देखा बाई जानिब देखा और कहा आका अरे अब वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं अलमदार था, अरे जहाँ लश्कर है वहीं जाकर अलमदारी करूंगा। हुसैन कहते हैं अब्बास अरे जरा मेरे साथ आओ। एक खेमे के पास लाए, कहा
अब्बास आवाज सुन रहे हो? कहा हाँ भैया, हाँ। कहा अरे बच्चे अल्लाह तश कर रहे। कहा अब्बास अरे जानने से ना रोकूंगा, मगर पहले सकीना के लिए सभी ने आराम कर दो। तारीख कहती है अब्बास खेमे में दाखिल हुए। कहा सकीना मेरे लाल अरे अपनी मश्क ला दो। अरे जैसे ही अब्बास ने मश्क को कहा, सकीना ने बच्चों से कहा बच्चों अरे अब गम ना करो, मेरा चचा पानी ले जा रहा है, अब तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। अब्बास ने मछली लिया, लेकर चले और जैसे ही सवार हुए चलना चाहते हैं, हुसैन ने अब्बास को रोक दिया। अब्बास को रोका, अलम को झुकाया, कुछ लिखा हुआ था उसको मिटाया और कुछ तहरीर किया। ज़ैनब सोचिए अब्बास से कितनी मोहब्बत है। ज़ैनब दर खेमा से देख रही है, हुसैन को देख रही है, कुछ मिटा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। एक मरतबा अब्बास बढ़े, ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया, भैया अरे जरा मेरे पास तो आइए। हुसैन आए, कहा भैया अरे मेरे गाजी के परचम पर आपने क्या मिटाया, क्या तहरीर किया? हुसैन ने गायब है, अरे बाबा के परचम पर लिखा था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। मैंने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास को लटकाना अब्बास का वास्ते में मारूद हम सबको मकसद हुसैन इब्न अली के साथ वफादारी करने की तौफीक इन जवानों को जनाब अली के सदक़े में सेहत व सलामती अता फरमाए। हमारे बुजुर्गों को जनाब इब्न मज़ाहिर के सदक़े में सेहत व सलामती अता फरमाए। इनका साया हमारे सर पर बाकी रहे। और जो भी बीमार है वो शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। कोरोना जैसी वबा को हम लोगों से और इंसानी आलम इंसानियत से दूर फरमा।